We're now getting you a mega exclusive news break in the Aryan drug case. We've accessed WhatsApp chats between Aryan Khan and Ananya Panday. This hasn't been out ever before. Aryan in the WhatsApp chats has spoken about drugs, and perhaps the most incriminating one of the lot that we've scanned through here on India Today is Aryan Khan mentioning in a WhatsApp chat, "Let's do cocaine tomorrow." In the WhatsApp chats, Aryan is also seen threatening friends in the name of NCB. And ironically, really, he's saying that I will put you guys in trouble with the NCB. Aryan talks about bulk buying of narcotics as well. The NCB also has Aryan's chats with 3 other celebrity kids that they're looking into right now. But these are WhatsApp chats that we've accessed here on India Today, based on which the NCB is saying that Aryan Khan cannot be granted bail. They've spoken particularly about commercial quantity of drugs, about Aryan Khan also doing hard drugs. And in these WhatsApp chats, there's a discussion of cocaine where Aryan Khan says, "Let's do cocaine tomorrow." He's also seen talking about bulk buying, ironically jokes with his friends about getting them in trouble with the NCB. There are chats also with Ananya Panday in which there are discussions about drugs. We'll decode exactly who he's spoken to with regards to cocaine, bulk buying, etc. But there is a lot of these WhatsApp chats that we've accessed here on India Today. We're screening through it. You can see some of those messages on your screens as well. Aryan Khan is mentioning to Ananya Panday time and again about weed. This came up last week as well. But in these chats that we've now accessed here on India Today, Aryan is mentioning, saying that weed is in demand. And Ananya says, "I'm getting the weed." Besides that, Aryan Khan also in these chats with some other friends speaks about cocaine, saying, "Let's do cocaine tomorrow." And in another chat, he talks about bulk buying, about a commercial quantity of drugs. But if you look at the chat between Aryan Khan and Ananya Panday, it's again about weed. He's saying that weed is in demand. "I'll take it from you in secret." And Ananya responds saying, "I am getting it." Aryan then also almost issues a reminder to her saying, "Did you get it?" And she replies saying, "Yes, I'm getting it." So that is the conversation between Aryan Khan and Ananya Panday. There's also another incriminating WhatsApp chat that we've managed to get here on India Today, where Aryan is speaking to some friends. And in that chat, he says, "Let's do cocaine tomorrow." Besides that, he jokingly threatens his friends, saying, "I'll get you in trouble with the Narcotics Control Bureau." Mustafa is joining us live with more details on this. Mustafa, some of the highlights of those WhatsApp chats is here on India Today. We're putting that out on our screens of the chat between Aryan and Ananya, where there was a discussion on getting weed, about how Aryan will pick it up from Ananya. There's also a discussion of Aryan Khan saying, "Let's do cocaine tomorrow" with some other friends. Yes, of course, and this is evidence which had been shown by the Sessions Court when Aryan Khan's bail was rejected, and it's likely that the same evidence will be put forth in front of the High Court. Remember, Ananya Panday was called in for questioning by the NCB regarding these same chats. Her devices have been, seized by the NCB, and then the dump data on these chats is being retrieved. So the chats which have come to light clearly show that there was some exchange of narcotics which had taken place between Ananya and Aryan Khan, and hence they want to substantiate it from Ananya Panday. We don't know whether what is the role of Ananya Panday exactly, whether she'll be a witness in the case or whether she'll be as an accused in this entire case. But as of now, the chats are clearly showing that the NCB have some grounds regarding WhatsApp chats about drug dealing, and hence this entire thing was, the entire case was made against Aryan Khan. But we'll have to wait and see how this pans out in court and how NCB is able to prove that after these chats, the consumption of narcotics and possession of narcotics did actually take place. Back to you. There are a couple of things I want to highlight here. One is that even as these WhatsApp chats have emerged, remember that Ananya Panday was summoned for a 3rd time by the NCB yesterday. She chose to skip those summons. Secondly is the fact that these chats come at a time when Aryan Khan is hoping that he gets some legal relief from the Bombay High Court today. But in light of the fact that there's clearly conversations here, Mustafa, about 2 things. One is about doing cocaine, where Aryan Khan himself says, "Let's do cocaine tomorrow" in those WhatsApp chats. Second, there is a talk about bulk buying, we understand, in these WhatsApp chats, both of which spell a lot of trouble for Aryan.
Well, that is a different chat in which the NCB has said that there was a conversation of Aryan Khan with a foreign national in which the bulk buying was being discussed, and they were trying to trace that other person who was chatting with Aryan Khan, but that has not happened yet. In the other case, which Ananya Panday and Aryan Khan, these chats have taken place, and the NCB had got these chats which we have accessed now, and now on these basis they have been calling Ananya Panday to record her statement. And remember, whatever Ananya Panday must have said in her statement will be important as a ground for the NCB to oppose Aryan Khan's bail. We'll have to wait and see what really pans out in court, but these chats is one of the basis for Aryan Khan's case to be made by the NCB. Whether they are able to entirely put that as a ground to oppose the bail of Aryan Khan, we'll have to wait and see. But yes, as of now, in the case of Aryan Khan, the NCB had WhatsApp chats as their ground. They're trying to get a statement similar to the chats which have happened from Ananya Panday. We'll have to wait and see what really Ananya Panday has said in her statements, because first we were getting to hear that they were just jokingly talking about it, then she has accepted that she had procured drugs. So what really is the statement of Ananya Panday to NCB, and if she has confirmed the consumption of drugs, then trouble will increase for Aryan Khan. Back to you. The information we're picking up is that Aryan speaks about bulk buying of narcotics and that he ordered weed worth 80,000 rupees from someone, from a supplier. Besides that, also the suspicion of the NCB, as far as Ananya Panday is concerned, based on these WhatsApp chats, is that Ananya supplied small quantities of weed with a peddler who she had, with a supplier who she was in touch with, that she was getting weed from them and then giving it to Aryan Khan. Small quantities is what the NCB suspects, but that's why her role also in this investigation is so very crucial. There's also information coming in, Mustafa, that based on these WhatsApp chats, there are two other celebrity kids who are under the scanner. Any details about who they are? Because we understand the NCB is looking into that angle as well, in which, in all likelihood, we're going to be seeing more high-profile names emerging. Well, it could be very much possible that NCB has some more high-profile names in the chats, because Aryan Khan being in the Bollywood circle, he must have had friends who are star kids, and hence these names can crop up. But yes, as of now, NCB is saying that they don't want to harm anybody's reputation by giving their names. They'll be only called for questioning once it's confirmed, like Ananya Panday was, and they're going through the details. If there are such concrete chats and narcotic consumption, then it is likely that more people could be summoned. There could be more people on the list, but NCB is tightly about the names as of now, keeping in mind their reputation. Back to you. So a number of conversations that have emerged. The one between Aryan and Ananya dates back to 2019. And the reason the NCB suspects that Ananya was supplying small quantities of weed was that she says that now I'm in the business. Aryan responds, did you buy weed? She doesn't respond. Then Aryan again writes Ananya in that message, and then she replies saying, I am getting it. That is the conversation between Ananya and Aryan. That's why Ananya's role is also being looked into. I want to take this across to Arvind Oja. He's accessed those WhatsApp chats exclusively for us. Arvind, हमको ये जानकारी दे दीजिए, जो नया WhatsApp chats मिला है, अभी और ज़्यादा प्रूफ है आर्यन खान के खिलाफ. कोकेन कंज्यूम कर रहा था शायद, because he says now let's do cocaine tomorrow. Also, there's a discussion about bulk buying of drugs. उसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे दीजिए. जी देखिए अक्षता, 26 दिनों से पूरे देश की मीडिया जिस न्यूज़ के पीछे पड़ी है, इंडिया टुडे ने पहली बार वो एक्सेस किया है व्हाट्सएप चैट, जिसमें अनन्या पांडे, जिनसे लगातार 2 दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का आर्यन खान, जिनको अरेस्ट किया गया, उनके साथ जो चैट है, उस चैट में बाकायदा जो आर्यन खान है वो अनन्या पांडे से वीड की डिमांड कर रहे हैं, और अनन्या कह भी रही हैं कि वो वीड लाकर दे देंगी, वो वीड लाकर दे देंगी. उसके बाद बाकायदा वीड देने की भी बात हो रही है. इस वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को संदेह था कि बहुत मुमकिन है कि अनन्या पांडे ने वो वीड सप्लाई किया है आर्यन खान को. एक स्मॉल सप्लायर के तौर पर अनन्या पांडे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम देख रही थी. इस वजह से 2 दिनों तक उनसे पूछताछ हुई थी. आगे भी अनन्या पांडे से पूछताछ होगी, लेकिन ये चैट अनन्या पांडे की मुश्किलें, जो इंडिया टुडे के पास है, अनन्या पांडे की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ा सकता है. नंबर 2, आर्यन एक जगह बाकायदा अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लिखते हैं कि लेट्स डू कोकेन, यानी कोकीन लेने की बात हो रही है. उसके बाद जो सबसे हैरानी वाली बात है, अगर इस व्हाट्सएप चैट में देखेंगे तो एनसीबी की बात हो रही है, यानी
जिस तरीके से पिछले दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई में क्रैकडाउन किया है, खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच, तो बाकायदा कोकीन लेते हुए ये भी बात हो रही है कि वो एनसीबी से मंगवा देंगे। तो ये अपने आप में एक काफी हैरान करने वाली बात है कि जहां ड्रग्स की बात हो रही है, वीड की बात हो रही है, कोकेन की बात हो रही है, जिसमें आर्यन खान है, अनन्या पांडे है, उसी के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनसीबी की बात कर रहे हैं, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से वो कोकीन मंगवा देंगे। तो ये वो व्हाट्सएप चैट है जो कोर्ट में भी सबमिट किए गए थे। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनने 20 लोगों को गिरफ्तार किया, आर्यन खान समेत, और कई हार्ड ड्रग्स रिकवर किया है, इंटरनेशनल सिंडिकेट स्टेब्लिश किया है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप चैट है ये भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दिए गए थे, जिस वजह से बेल रिजेक्ट हुआ था। तो इसमें अगर आप देखिए तो बाकायदा जो आर्यन खान है वो अनन्या पांडे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उनसे बात कर रहे हैं कि वीड का जुगाड़ हो सकता है क्या। उसके बाद वो जवाब नहीं देती है, फिर वो कहती है आई एम गेटिंग इट, मैं ये पा रही हूँ, मैं ये ला रही हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि फाइन मुझे दे दो। तो और सीक्रेटली तरीके से, बाकायदा इसमें सीक्रेटली तरीके से बात हो रही है, सीक्रेट तरीके से आप हमें ये दे दो। इस वजह से ये एनसीबी को शक था कि अनन्या पांडे ने क्या कभी आर्यन को ये सप्लाई किया था। हालांकि अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन इसी वजह से लगातार अनन्या पांडे से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही थी। 2 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है, आने वाले दिनों में पूछताछ होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया टुडे के पास जो ये व्हाट्सएप चैट है आर्यन और अनन्या पांडे के साथ वाला, ये अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ये चैट ये भी स्टैब्लिश करता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लेट्स, आर्यन बोलते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि लेट्स डू कोकीन, यानी कोकीन लेने की बातचीत हो रही है। तो ये वो एविडेंस है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, जिसमें से कुछ चैट, सिर्फ कुछ चैट इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास और भी बहुत से चैट है। एनसीबी जब ये जांच कर रही थी तो ये पाया कि कई ऐसे और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं वो इस बिजनेस में है, इस बिजनेस में यानी इस नशे के इस नशे में वो इन्वॉल्व है। इस वजह से ये क्रैकडाउन चल रहा था। एनसीबी की कोशिश है कि जो ड्रग पैडलर है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चों के बीच पेनिट्रेट कर चुके हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन ये इंडिया टुडे ने पहली बार अपने व्यूअर्स को दिखाया कि किस तरीके से वीड की बात हो रही है, किस तरीके से कोकीन लेने की बात हो रही है, और इसी को आधार बनाकर और रिकवरी करके तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो अरेस्ट किया है। उसके बाद कोर्ट में भी ये सब जो व्हाट्सएप चैट है वो सबमिट किए गए हैं। हाई कोर्ट में भी अगर इस केस की हियरिंग होगी तो जाहिर सी बात है इन सब चैट्स का जिक्र जरूर होगा। अरविंद, 2 चैट्स है, एक अनन्या के साथ जहां पे वीड डिस्कस हो रहा है, दूसरे चैट में एक फ्रेंड्स ग्रुप है जहां पे आर्यन बोलते हैं लेट्स डू कोकेन टुमारो, आई एम गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल विद द एनसीबी, जोकिंगली एंड रादर आयरॉनिकली इफ यू लुक एट इट नाउ। ये फ्रेंड्स कौन है जो इस ग्रुप में है? क्योंकि आपने हमको ये भी बताया था कि अभी 2 और सेलिब्रिटी किड्स भी शायद इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, देखिए जो एनसीबी को इनिशियल एविडेंस मिले, देखिए जो चैट्स है, जिस तरह से आर्यन खान का और खासकर अरबाज का जब मोबाइल फोन खंगाला था तो ऐसे कई चैट्स मिले थे, लेकिन सभी पर हाथ डालना या सभी के खिलाफ केस को आगे प्रोसीड करना, उनका घर सर्च करने के लिए कुछ एविडेंस की जरूरत होती है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस बनाया नहीं जा सकता है। इस वजह से एविडेंस कलेक्शन की बात हो रही थी। जो अनन्या पांडे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, आर्यन खान के साथ ये चैट काफी वक्त पहले मिल चुका था, लेकिन एनसीबी की ये कोशिश थी, वो सीक्रेट तरीके से काम कर रहे थे और एनसीबी की कोशिश थी कि एक मिडिलमैन पकड़ा जाए। मिडिलमैन कौन हो जो ये एस्टैब्लिश करे कि अनन्या पांडे अगर वीड देने की बात करनी थी आर्यन खान को, तो वीड कहां से लिया होगा, कहां से खरीद कर आर्यन को दिया होगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो बाकायदा ये बात हो रही है, आर्यन पूछते हैं कि वीड मिल सकता है क्या, वो कहती हैं कि आई एम गेटिंग इट, मैं उसको व्यवस्था कर रही हूँ। उसके बाद वो कहती है आई एम इनटू बिजनेस, यानी उनके पास आ चुका है। वो कहते हैं कि मुझे तुम ये सेक्रेटरी दे दो। तो ये जो चैट है, हालांकि काफी लंबा चैट है, लेकिन हमने कोशिश की कि इस चैट को हम एक्सेस करें और हमने एक्सेस किया। तो इसमें बाकायदा ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि अनन्या पांडे कहीं न कहीं वीड दे रही हैं। स्मॉल सप्लायर के तौर पर
एनसीबी फिलहाल अनन्या पांडे को देख रही है और शायद यही वजह है कि अनन्या पांडे से बैक टू बैक 2 दिनों तक पूछताछ हुई है। आगे भी पूछताछ होगी लेकिन मुश्किल बढ़ेगी। दूसरा जो आपने पूछा ग्रुप चैट की, हम उनके नाम तो नहीं ले सकते लेकिन उसमें कई लोग हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिनके नाम हमें इंडिया टुडे को भी जानकारी है, लेकिन हम अभी वो नाम नहीं ले सकते। उसमें कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, तो फिलहाल एनसीबी की नजर उस पर है। लेकिन अगर आप पूरे लार्जर पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो मुंबई है वहां पर खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से उनके बीच जो ड्रग सप्लायर है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, ये काफी अपने आप में शॉकिंग भी है और चिंता की बात भी है। क्योंकि अगर आप देखिए तो पहले वीड की बात हो रही थी लेकिन उसमें आर्यन खान करते हैं लेट्स डू कोकीन। अब ये सब जो तमाम चीजें हैं, एनसीबी ने स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट लिया होगा और इसी आधार पर, व्हाट्सएप चैट के आधार पर धीरे धीरे वो पूछताछ की लोगों से। उसके बाद उन ड्रग पैडलर को पकड़ा गया जो सप्लायर थे। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जगह आर्यन बकायदा बल्क में, जो कोर्ट में, अगर आपको याद होगा, कोर्ट में जब बेल की हियरिंग हो रही थी तो एनसीबी ने कहा था कि बल्क में ड्रग्स की बात हो रही थी, तो उसमें जो चैट मिला है उसमें आर्यन एक अचित नाम का सप्लायर है, जिस अचित को एनसीबी की टीम ने अरेस्ट किया था, उससे 80,000 रुपए का बल्क में कंट्राबाइट वो मंगा रहे थे। वो स्टॉक करना चाहते थे, वो अपने घर पे रखना चाहते थे, वो कहीं अपने दोस्तों के रखना चाहते थे, बल्क में इस वजह से वो ड्रग मंगवाई जा रही थी। तो ऐसा भी एनसीबी के सोर्सेज ने बताया। लेकिन हमने, इंडिया टुडे ने आर्यन और अनन्या पांडे का जो चैट है वो एक्सेस किया है। आर्यन का अपने दोस्तों के साथ जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो चैट एक्सेस किया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिलहाल जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है अनन्या पांडे का, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, उन अनन्या पांडे का हमने वो चैट एक्सेस किया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर एनसीबी अनन्या पांडे से क्यों पूछताछ कर रही है, अनन्या पांडे को क्यों एक स्मॉल सप्लायर के तौर पर देखा जा रहा है, और कैसे आर्यन बकायदा वीड की बात कर रहे हैं और अनन्या पांडे कहती है कि मैं वो व्यवस्था कर दूंगी। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो जो ड्रग्स का आदान प्रदान हुआ हो, लेकिन एनसीबी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। एनसीबी उसी चैन को एस्टैब्लिश करना चाहती है और इसी वजह से बार बार अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है। अरविंद, ये जो चैट्स है और स्पेसिफिकली 2 चैट्स जो है, एक आर्यन और अनन्या के बीच और दूसरे जो एक फ्रेंड्स ग्रुप में आर्यन बात कर रहा है लेट्स डू कोकेन टुमारो, आई विल गेट यू इन ट्रबल विद एनसीबी, ये 2 जो व्हाट्सएप चैट्स है, इसका डेट क्या है, कब था ये कॉन्वर्सेशंस? जी मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि एनसीबी के बाद जो चैट्स है वो जब आर्यन का खास तौर पर वो जब क्रूज पार्टी हो रही थी उसके 3 दिन पहले तक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीबी ने इस क्रूज ड्रग्स पार्टी में सेक्शन 29 एनडीपीएस ऐड किया है। सेक्शन 29 एनडीपीएस का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, एंड उस कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले एनसीबी की टीम ने यह एस्टैब्लिश किया है कि आर्यन, अरबाज और एक और शख्स वो आर्यन के घर से, बंगले से निकलते हैं मर्सिडीज कार में और एक साथ क्रूज पर जाते हैं। एक तरफ ये रखती है एनसीबी, दूसरी तरफ ये रखती है कि क्रूज में जाने से पहले ड्रग्स की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए जो एनसीबी ने आर्यन और अरबाज का कुछ ड्रग पैडलर के साथ बातचीत का चैट वो सामने रखा है और ये दिखाने की कोशिश की है कि पहले ड्रग्स व्यवस्था की गई, उसके बाद सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और क्रूज पार्टी में जाते हैं। तो 2019, 2020, 2021 ये 3 सालों का चैट वो रखा हुआ है। 2019 जो हमें जानकारी मिली है अनन्या और जो आर्यन है उसका ड्रग्स चैट वो जिसमें ये बातचीत हो रही है ड्रग्स को लेने देने की, और जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं, आर्यन और अनन्या पांडे कह रही है कि आई एम गेटिंग इट और आई एम इनटू बिजनेस, फाइन मुझे दे दो, मैं सीक्रेटली दे दो। तो ये वो चीजें हैं जो उसमें बात हो रही है। तो बेसिकली जो चैट्स है कहीं ना कहीं उसको अदालत, चाहे अगर आप बात करें, इसके पहले भी एक बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली जिनको अरेस्ट किया गया था, जब उनका बेल ऑर्डर आया था तो उस ऑर्डर में भी बाकायदा जज ने जिक्र किया है कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर भी ऑर्डर पास किया है कि ये देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अरमान कोहली है वो बिजनेस में है। तो अब कोर्ट जो चैट्स है, जो बातचीत है, उसको भी बहुत सीरियसली लेती है, न सिर्फ रिकवरी बल्कि स्टेटमेंट, उसके अलावा रिकवरी, उसके अलावा जो बातचीत हो रही है उन सभी को सीरियस लेती है। और ये आपको बता दूं मैं बहुत कि जो हमने ये चैट एक्सेस किया है
इनमें से काफ़ी ऐसे चैट हैं जो कोर्ट में बाकायदा सबमिट किए हैं। एनसीबी की टीम ने आर्गुमेंट के दौरान सेशन कोर्ट में जज को दिए गए थे। काफ़ी ज़्यादा चैट दिए गए थे। आर्यन के अनन्या पांडे के साथ चैट वो दिए गए थे, आर्यन के ड्रग पैडलर के साथ वो चैट दिए गए थे, और उन्हीं सबको पढ़ने के बाद और सेक्शन 29 का जिक्र करते हुए वो बेल जो है वो रिजेक्ट हुआ था। And that's an important point, because today the Bombay High Court is hearing Aryan Khan's bail plea, and amid that you've got these explosive WhatsApp chats as well. Arvind and Mustafa, do stay on with us. I'm slipping into a very, very short break. On the other side, we continue getting you some of the highlights of these WhatsApp chats that you see on your screens between Aryan Khan and Ananya Panday, where there's a discussion about weed, and also the incriminating WhatsApp chats of Aryan with his friends on a group where he speaks about cocaine, where he speaks about also bulk buying of drugs, and also about, ironically, threatening them, saying he'll get them in trouble with the NCB. We're getting you more details of these WhatsApp chats on the other side of a very short break here on India Today.